Hello everyone, good evening to all of you. This is my YouTube channel Eager to Learn and I welcome all of you once again. In today's video, it is going to be about English speaking. Yes, you are right. Today we are going to discuss on there are many questions people ask, and I also asked some of seniors that how can I be fluent while English speaking. So if you are beginner or if you are more than a beginner, then this video is going to be useful to you. Okay, तो आज का टॉपिक जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में है. बेसिकली लोगों का बहुत सारा सवाल आता है कि इंग्लिश बोलना कैसे सीखें. So the main thing that they ask about English speaking, and they ask how can we speak English. Then there is one way, and the best way to speak English is that if you want to learn speaking English, then start speaking English. There is no any shortcut, there is no any other option. Okay, everything that we want to do, we will have to do with process. We cannot escape process, and we cannot achieve anything in a short time. We cannot achieve anything immediately. Okay everyone, so if any time, any day it runs in your mind that how can we speak English, then you should tell your mind, you should tell yourself that speak English, then you will be able to speak English. There is only one way. होता क्या है कि हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग तो बोलना, इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, लेकिन स्पीक करना नहीं चाहते हैं. तो बेसिकली इन बातों का सबसे अच्छा आंसर और सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि हम अगर इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं तो हमें इंग्लिश स्पीक करना होगा. अगर आप किसी भी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो आप उसके रूल्स रेगुलेशंस को जानिए, पढ़िए, अच्छी बात है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू प्रैक्टिस, बिकॉज नो वन कैन टीच यू हाउ टू स्पीक until you don't start speaking yourself. This is very clear. आपको कोई भी इंसान इंग्लिश स्पीकिंग सिखा नहीं सकता है जब तक कि आप खुद इंग्लिश स्पीक करना शुरू नहीं कर देते हैं. रही बात ग्रामर की, तो ग्रामर सीख लेंगे, ज़रूरत की चीज़ों को सीख लेंगे, वर्ड मीनिंग्स को भी सीख लेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है बोलना शुरू करना, और आपको भी यही करना होगा. ओके, आइए कुछ एग्जांपल्स आपको देना मैं चाहूँगा. दैट इज़ इट रियली नेसेसरी टू स्पीक इंग्लिश फॉर लर्निंग स्पीकिंग इंग्लिश? देन द आंसर इज़ absolutely yes. There are many examples. One of those I would like to represent one example in front of you. In classroom, I notice there are many students, around 40 to 50 students we have in each class in the institution where I teach. There I notice most of the students, they hesitate while expressing their thoughts. When I call them on board and I tell them to introduce yourself, they know everything about themselves, but they cannot express. Do you know why? The reason behind it is because they are not used to of speaking in front of the people. That's the main reason. जब बच्चों को बोर्ड पर बुलाया जाता है, कुछ बोलने के लिए कहा जाता है, एक सिंपल सा बात कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ बताइए, तो बच्चे ऐसा नहीं है कि वो अपने बारे में भी नहीं जानते हैं कि उनका क्या नाम है, कहाँ रहते हैं, कितनी उनकी उम्र है, कौन से क्लास में पढ़ते हैं, कौन सा सब्जेक्ट उनका फेवरेट है, कौन सा खेल खेलना पसंद करते हैं. ये सारी बात हर इंसान अपने बारे में तो जानता ही है, बट
नहीं बोलने की आदत होने की वजह से वो इन चीज़ों को बोल नहीं पाते हैं। यही मामला इंग्लिश स्पीकिंग का है। एज आई सेड in the starting of my video that if you want to learn how to speak English, then you will have to start speaking English. From where? Then I will try to teach you. I will try to understand the logic, the process of it. Okay, the first thing that we have to do, and that I also do, that I also used to do in the beginning, and that is daily using sentences. वैसे sentences जिनको हम अपने डेली लाइफ में बोलते तो हैं लेकिन हिंदी में ही ज़्यादातर बोला करते हैं, तो आपको इस तरह के sentences को इंग्लिश में बोलने की कोशिश करनी है। कहाँ बोलेंगे? अपने दोस्तों के साथ बोलेंगे, आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ बोलेंगे, जिस भी फील्ड में आप काम करते हैं अपने कॉलीग के साथ इन सेंटेंसेस को बोलेंगे। अपने डेली लाइफ में एक रूटीन में इस चीज़ को शामिल करेंगे। क्या शामिल करेंगे? उन डेली यूजिंग सेंटेंसेस को उनके साथ बोलेंगे। इससे क्या होगा कि अगर आपकी गलतियाँ होती भी है तो आपके दोस्त के सामने हम अपनी बातों को एक्सप्रेस करने से ज़्यादा घबराते नहीं हैं। और कहीं ना कहीं आप अगर इंग्लिश ठीक से नहीं बोल पाते हैं तो आपके मैक्सिमम दोस्त भी उसी लेवल के होंगे, और अगर कोई आपसे बेहतर लेवल के हैं तो उनको चाहिए कि वो आपके मिस्टेक को करेक्ट करने की कोशिश करें, ना कि आपके मोरालिटी को डाउन करें। आपके ऐसे दोस्त जो आपसे बेहतर इंग्लिश बोल पाते हैं उनको चाहिए कि वो आपको सिखाएं, हेल्प करें, कंफर्ट फील कराएं, आपको इनकरेज करें कि यस यू कैन डू इट, ट्राई इट अगेन अगेन एंड अगेन। ओके एवरीवन, so the first thing that I have told you, you will have to start speaking daily using sentences. अपने डेली लाइफ में जो सेंटेंस हम लोग यूज़ करते हैं उसको इंग्लिश में छोटे छोटे सेंटेंसेस को बोलने की कोशिश करनी है। इस चीज़ से डेफिनेटली आप एक चीज़ को जब हम 10 बार करते हैं तो उसमें बेहतर होते चले जाते हैं। एक बहुत ही फेमस कोटेशन है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करने से, अभ्यास करने से हम जिस फील्ड में अभ्यास करते हैं बेहतर होते चले जाते हैं। ठीक उसी तरह इंग्लिश स्पीकिंग या कोई भी फील्ड हो, हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, एंड इट विल डेफिनेटली मेक यू परफेक्ट वन डे इफ़ यू कीप ट्राइंग अगेन अगेन एंड अगेन। अब डेली यूजिंग सेंटेंसेस के अलावा और कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है? तो बहुत सारी जगहों पे जब मैं भी बिगिनर था, अभी भी मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि आई एम नॉट अ गुड इंग्लिश स्पीकर माई सेल्फ, बट इफ़ यू आर बिगिनर देन आई कैन से आई एम बेटर दैन यू। आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ डे बाई डे, एंड आई एम ऑल्सो लर्निंग डे बाई डे। आई एम नॉट अ टीचर, आई एम अ लर्नर, एंड आई लर्न एवरी डे इन माई लाइफ। Something new everyone learns in his life every day. Similarly, I am also one of them. तो अब डेली यूजिंग सेंटेंसेस के अलावा अगर हम बात करें कि आपको और क्या करना चाहिए जिससे कि आप बेहतर हो सकते हैं इंग्लिश स्पीकिंग में, तो हाँ, वोकैबुलरी का भी एक रोल होता है। वर्ड मीनिंग, आपके माइंड में कितने वर्ड्स हैं जो आपके जहन में हैं जिनका हिंदी मीनिंग आप जानते हैं, तो ये भी हेल्प करता ही है और बहुत हद तक करता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पहले आप बोलना शुरू करेंगे तब आपको वर्ड मीनिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी। आप लाख वर्ड मीनिंग याद कर लें, लेकिन अगर आप बोलना शुरू नहीं करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि उन वर्ड मीनिंग्स का कोई यूज़ है ही नहीं। ओके, तो सेकंड प्लेस पे आप वर्ड मीनिंग्स को रख सकते हैं कि वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करना है। आपके माइंड में जितने भी वर्ड मीनिंग्स हैं उनके नंबर्स को डे टू डे इंक्रीज़ करना है। हर दिन कुछ ना कुछ वर्ड मीनिंग्स को सीखने हैं, जो कि मैं भी करता हूँ और मैंने किया भी है। ओके, थर्ड थिंग दैट आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू ऑल, दैट इज़ you will have to be fluent while reading the things. You will have to practice reading the paragraphs, books, newspapers, magazines. Okay,
ये सब चीज़ें भी आपको करनी पड़ेंगी। जैसे कि किसी भी क्लास का बुक, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो डेली लाइफ में तो आप इंग्लिश बुक पढ़ ही रहे होंगे, और किसी भी मीडियम के हैं प्रैक्टिस आपको करना ही है। ऐसा नहीं है कि जो CBSE बोर्ड या ICSE के बोर्ड के बच्चे हैं वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जिन भी बच्चों को हमने देखा है कि जो इंग्लिश बोलने में बेहतर हैं तो वो बोलने की कोशिश करते हैं, भले ही वो गलत क्यों ना बोलें। और एज अ टीचर, एज अ सीनियर, किसी को भी चाहिए कि हम उसे गाइड करें, ना कि उसको डिस्करेज करें, ना कि उसकी मोरालिटी को डाउन करें। ओके। और हम लोग, और ख़ासकर मैं, इतना भी ज़्यादा नॉलेजेबल तो नहीं हूँ कि किसी को उसकी गलती को सुधारने के बजाय मैं उसे डिस्करेज करूँ, मैं उसे गलत कहूँ। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़, वोकैबुलरी की बात कर ली गई, रीडिंग की भी बात कर ली गई। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एक जो मुझे लगता है कि आप एक के सुनने का भी बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होता है, मेरे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है। आई यूज़ टू वॉच लेक्चर्स ऑफ एनी स्कॉलर दैट यू लाइक, ऑफ एनी फील्ड दैट यू लाइक movies you can watch, but I will not suggest you to go and watch movie from today, then it will help you to improve your English speaking. No, not at all. I am saying it can be also a part of improving your way of speaking English. Okay. Then I used to do what? I used to listen scholars, motivational speakers, क्योंकि हम सुनने के बाद भी हमारे ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ता है। चीज़ों को जब हम बार बार सुनते हैं तो हम उसको बोलने भी लग जाते हैं। जैसा कि एक एग्जांपल मैं क्लासरूम से देना चाहूँगा। इन आवर क्लासरूम मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, मोर देन 90% ऑफ स्टूडेंट्स, दे आर गुड लिसनर। वाई? दे आर गुड लिसनर, वो अच्छा सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। वाई? द रीज़न बिहाइंड इट is that most of time they keep listening their teachers, and we teachers in the classroom most of time we use English sentences, and students they keep listening. That is why they are a good listener, but they don't speak English. That is why they are not able to speak English comfortably, or they have hesitation, they get panic. There are many reasons, and the main reason that because they have lack of confidence, and lack of confidence is only because they are not used to of speaking English. Okay friends, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मेरे लिए था कि मैं आपसे बताना चाहता था कि ये 4 पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं। फर्स्ट थिंग है कि आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी है। सेकंड थिंग है कि आपको वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करना है। एंड थर्ड थिंग इम्पॉर्टेंस ये भी है कि आप चीज़ों को रीडिंग करने की आदत डालें। फ्लुएंसी आपको पढ़ने से भी आएगा, और जब आप पढ़ने में फ्लुएंट हो जाएंगे तो डेफिनेटली है कि बोलने में ज़्यादा बेहतर फील करेंगे। फोर्थ थिंग जो मैंने कहा है कि आप चीज़ों को सुनकर भी ऑब्ज़र्व करते हैं, और हर वो चीज़ जो हम सुनते हैं, देखते हैं, उसका एक इम्पैक्ट हमारे माइंड पे पड़ता है और हम उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट करने लग जाते हैं। जैसा कि मैंने एक एग्जांपल दिया क्लासरूम से कि मोस्ट ऑफ टाइम चिल्ड्रेन दे लिसन देयर टीचर्स, दैट इज़ वाई दे आर गुड लिसनर, बट दे स्किप स्पीकिंग। वो बोलने से बचना चाहते हैं, इंग्लिश में बात करने से बचना चाहते हैं, दैट इज़ वाई दे आर नॉट गुड स्पीकर। बट देयर आर मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम दोज क्लासरूम, फ्रॉम द सेम classroom, they are very good at English speaking. Why? Because they practice it, because they talk with their elders at home, their parents at home, and their teachers as well in the school. Okay? तो आज की वीडियोज़ में मैंने जिन बातों को बताया है उन चीज़ों को मैं खुद भी फॉलो करता हूँ, और आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी इन चीज़ों को फॉलो करें। आई होप आपको ज़रूर इम्प्रूवमेंट दिखेगा। और लास्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा, चीज़ों को पेशेंस के साथ करें। किसी चीज़ का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, और अब आप अगर चीज़ों को प्रोसेस के साथ सीखते हैं, डेफिनेटली वो लॉन्ग लास्टिंग होगा और काफ़ी दिन तक आपके साथ बना रहेगा, टिका रहेगा। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। लेट्स सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।